Morning students, welcome to social science class. Today we are doing formation of Muslim League. Before that we have discussed that Indian National Congress was formed in 1885 by a retired official A.O. Hume, and Britishers wanted to control over the whole country, and it happened only if they just divide the Hindus and Muslims. So they divided Bengal to divide Muslims and Hindus. Okay, so the next step of Britishers was encourage the Muslim to form Muslim League. Okay, Muslim League was formed under the policy of divide and rule. Britishers encouraged the Muslim to form a separate organization of their own under the policy divide and rule. Okay. Britishers thought that if they divided Indians, they can rule easily over the country. So that's why they encouraged Muslim to divide, to make the separate organization for their rights, for their growth, for their development. Okay. Muslim League was formed in 1906 by Aga Khan, who was the religious head of Muslim sect. मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड जो थे आगा खान, उन्होंने मिलकर, और नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका के हेड थे, नवाब थे, उन्होंने मिलकर मुस्लिम लीग फॉर्म की. ओके, तो मुस्लिम्स के माइंड में बिठा दिया गया था दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदूज ओनली एंड दे आर डूइंग वर्क फॉर हिंदूज. So for Muslims growth, for Muslims welfare, there must be another organization that work for Muslims only. So Aga Khan and Nawab Salimullah formed the Muslim League. Okay. So this is about the formation of Muslim League. Next is Morley-Minto reform. Government announces this reform to pacify the moderates. Means they already just divided the moderates and radicals from each other, and they divided Hindus and Muslims also. But they have to satisfy all these. They have to satisfy Muslims, they have to satisfy moderates. Moderates still are on their own demands. They were asking for their demands कि what about the representation and what about the self rule, Swaraj and our education policy. तो ये सब चीज़ें moderates continuously Britishers से questioning कर रहे थे. Okay, so to pacify these, इन्हें समझाने के लिए, इन्हें satisfy करने के लिए Britishers announced a reform that is called Morley-Minto reform. Morley-Minto was the person, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स का रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में, और इंडिया की पूरी फंक्शनिंग के बारे में ब्रिटिश किंग को टाइम टू टाइम वो अपडेट दे रहे थे. ठीक है. सो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म किया गया टू पैसिफाई मॉडरेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. द रिफॉर्म डिड नॉट पे एनी हीट टू द डिमांड ऑफ इंडियंस फॉर स्वराज. Moderates continuously demanded for Swaraj, their self-rule, that we are able to rule, so we must have some representation. हमें भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए प्रॉपर हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिले. तो ब्रिटिशर्स ने उस स्वराज की जो डिमांड थी उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया. ठीक है. एंड अगेन दे डिड द सेम, डिवाइड एंड रूल. उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए फिर से एक गेम प्ले किया. व्हाट वाज दैट गेम? मुस्लिम्स वर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट. नाउ व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? जस्ट लाइक अ रिजर्वेशन. मुस्लिम्स को अलग से एरियाज दिए गए, उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया. एंड इस रिप्रेजेंटेशन में क्या था, जो कैंडिडेट्स थे वो तो मुस्लिम थे ही, बट
उन कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने के लिए जो मेंबर्स थे, जो कॉमन पर्सन्स थे, दे वर ऑल्सो द मुस्लिम्स ओनली, कि मुस्लिम्स को इलेक्ट करने के लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही, उस एरिया के मुस्लिम्स ही वोटिंग करेंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वॉज डन बाय द ब्रिटिशर्स। उन्होंने मुस्लिम्स को एक सेपरेट एरिया दिया जहां से सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्ट होंगे और मुस्लिम्स ही उनके लिए वोटिंग करेंगे। हिंदूज या सिख या कोई और कम्युनिटी उनके लिए वोटिंग भी नहीं कर सकती। ठीक है, दिस रिफॉर्म वॉज अ थ्रेट टू द हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स को बहुत डायरेक्ट वे में सेपरेट कर दिया था कि हिंदूज के जो कल्चर है, जो इनकी नीड्स हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं वो अलग हैं, और मुस्लिम्स की नीड्स, डिमांड्स और कल्चर सब अलग हैं। सो मुस्लिम नीड्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस और डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स, और हिंदूज की अलग हैं। ठीक है, तो उन्होंने टोटली डिफरेंट कर दिया उन्हें। तो यहाँ पर ये रिफॉर्म जो था ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट था। ओके, एंड मॉडरेट ऑपोजिट दिस रिफॉर्म एंड स्ट्रगल फॉर स्वराज बिकम मोर इंटेंस। मॉडरेट्स ने, अब मुस्लिम लीग ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उनके लिए अच्छी बात थी कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी, उन्हें अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा था, सेपरेट एरिया मिल रहा था जहाँ से सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्ट होकर जाएंगे। बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स थे उन्होंने इसे अपोज किया एंड दे स्ट्रगल फॉर स्वराज। उनकी जो स्वराज के लिए स्ट्रगल थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई। ओके, द नेक्स्ट इज होम रूल लीग। होम रूल लीग वॉज started in 1916. होम रूल लीग इज सेम एज सेल्फ रूल, कि हमें अपने होम मीन्स हमारी कंट्री, वी हैव टू रूल ओवर आवर कंट्री, हमें अपने होम पर, अपनी कंट्री पर अपना रूल चाहिए। तो दैट इज होम रूल लीग एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने स्टार्ट की ये होम रूल लीग मद्रास में in 1916, and on the other side Bal Gangadhar Tilak started it in Maharashtra. मद्रास में एनी बेसेंट वो आयरिश लेडी थी और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की 1916 में। द पर्पस ऑफ दिस लीग वॉज द सेम, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, इस लीग का क्या मेन पर्पस था? टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, के इंडियंस की अपनी गवर्नमेंट हो इंडिया में, कोई फॉरेन गवर्नमेंट, कोई फॉरेन पर्सन्स हम पर गवर्न ना करें। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट बट द एजिटेशन कंटिन्यूड। ब्रिटिश ट्राइड hard to stop all this, to stop this revolt और rebels। तो उन्होंने इस मूवमेंट को ख़त्म करने की, सप्रेस करने की, क्रश करने की बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट दिस एजिटेशन, दिस डिससेटिस्फेक्शन कंटिन्यूड। ये जो उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट चल रहा था ये चलता गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लखनऊ पैक्ट। Lucknow Pact was an agreement between Muslim League and Indian National Congress and radicals and moderates। ठीक है, तो ये इन सब के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप हुआ कि ये सब दोबारा से इकट्ठा हो गए फॉर सेल्फ रूल, फॉर स्वराज। ओके, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स डिवाइड हो चुके थे क्योंकि मॉडरेट्स को लगता था रेडिकल्स हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, एंड रेडिकल्स ऑल्सो फेल्ट द सेम दैट मॉडरेट्स आर जस्ट द बेगर्स एंड दे आर डूइंग नथिंग। सो रेडिकल्स बिलीव इन एक्शंस। ठीक है, तो दे जस्ट डिवाइडेड, बट एट दैट टाइम लखनऊ सेशन में दे केम टुगेदर फॉर सेल्फ रूल, फॉर देयर ऑन कंट्री, फॉर देयर ऑन गवर्नमेंट। ओके, तो इट स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट। इसने नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और 9 ईयर्स के बाद रीयूनाइट हुए थे मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स एंड दे साइंड अ जॉइंट पैक्ट
एट लखनऊ विद मुस्लिम लीग। मॉडरेट्स रेडिकल्स रीयूनाइट हुए और 9 साल बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया लखनऊ में मुस्लिम लीग के साथ, एंड दिस एग्रीमेंट वाज नोन एज लखनऊ पैक्ट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दे फेल्ट के वो ब्रिटिशर्स को अपने डिमांड्स के अकॉर्डिंग उनको अपने अकॉर्डिंग वर्क करने पर फोर्स कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं तो हमें हमारे राइट्स दिए जाएं। ओके, तो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस लखनऊ पैक्ट। ओके, दे जॉइंटली डिमांडेड सेल्फ रूल, उन्होंने इकट्ठा होकर सेल्फ रूल की डिमांड की। क्लियर? So this pact shows that Hindu-Muslim came together and now the nationalist movement became strong and we can get the independence soon और स्वराज soon। ठीक है, तो ये फीलिंग स्टार्ट हो गई सब में, सब ये सोचने लगे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो गए हैं, अब वो अच्छे से एक साथ मिलकर वर्क करेंगे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ चुकी है, अब हमारी नेशनल मूवमेंट्स भी स्ट्रांग हो गई है एंड वी गेट द इंडिपेंडेंस सून। दिस इज द main thinking after the Lucknow Pact of 1916. Okay, so today we have done formation of Muslim League, Parliamentary Reform, Home Rule League 1916 and Lucknow Pact of 1916. Okay, so read all these from your book and write down these please. ठीक है, write down in your notebook all these topics and read from your book. Thank you and have a nice day.